Hello, beautiful people. Welcome back to my channel, Commerce Dude, your flight to success. And yes, students, today the topic which we are going to discuss, in fact, जो हम distinction करने वाले हैं वो है distinction between dividend and interest. Obviously, chapter number 10, dividend and interest, 12th secretarial practice. So today we are going to understand the basic points of difference between the dividend and interest. Before going ahead, children, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is useful to everybody. On that great note, children, let's get started. Students, today obviously you can see again on the screen, I would like to tell you difference between dividend and interest. As the rules go, all three columns are very important, students. First column is more important because these are the points which you are going to mention and on the basis of which you are going to explain in the next two columns. Okay? So let's begin. First point of differentiation is definitely meaning. Students, dividend is the return payable to the shareholders. मतलब shareholders play a very important role of that particular company for their investment in the share capital. So how much investment they have done in the share capital of the company, उस हिसाब से उनको dividend मिलेगा. So definitely dividend is the return payable to the shareholders. ठीक है? Then what about interest then? Okay. It is the return payable to the creditors of the company. Be careful children, यहाँ पे ये जो interest है वो return है जो हम creditors को pay करते हैं. Creditors of the company. Company ने जिससे पैसे लिए हुए हैं definitely वो creditors हो गए, right? Such as we know debenture holder, deposit holder for that matter हो सकता है for the loan given by them to the company. As simple as that. पैसे वो डिवेंचर होल्डर से डिपॉजिट जिनसे भी वो लेते हैं पैसे वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिटर ऑफ द कंपनी बन जाते हैं और उनको जो रिटर्न मिलता है वो डेफिनेटली इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है. सो आई थिंक नाउ इट्स वेरी क्लियर हाउ पीपल गेट डिविडेंड, ऑन व्हाट पीपल गेट डिविडेंड एंड हाउ पीपल गेट इंटरेस्ट. ठीक है. सो लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट क्विकली. गिवन टू हुम? स्टूडेंट्स, डिविडेंड इट इज पेड टू द मेंबर दैट इज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ऑन बाय नाउ हमको पता है कि जो शेयर खरीदता है वो उस कंपनी का को ओनर हो जाता है फॉर वट एवर नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज हेल्ड, है ना. सो डेफिनेटली किसे दिया जाता है? इट इज पेड टू द मेंबर दैट इज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. इंटरेस्ट इट इज पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. दे आर नॉट द ओनर्स, दे आर द क्रेडिटर्स बिकॉज दे गिव द मनी टू द कंपनी, है ना. तो वो क्रेडिटर बन जाते हैं समवेयर डाउन द लाइन. फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता है. सो इट इज पेड टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेशन. ओके. डिविडेंड इट is to be paid only when company has made profits, therefore no obligation or compulsion to pay the dividend. Definitely जब कंपनी प्रॉफिट्स करती है तभी ही हम उनको पे कर सकते हैं ना. इक्विटी शेयर्स हो गए, इवन तो इक्विटी शेयर्स को फ्लक्चुएशंस में मिलता है, प्रेफरेंस को फिक्स मिलता है, बट देयर इज नो कंपल्शन. ऐसा नहीं है कि ऑब्लिगेशन नहीं है कि पे करना ही है. There is no obligation in case of dividend. But whereas the interest is concerned, children, it is not linked to the profits of the company. Payment of interest is an obligation and is to be paid by the company compulsorily. तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है. इनका जो भी इंटरेस्ट का जो भी ऑब्लिगेशन है वो तो है ही, क्योंकि वो प्रॉफिट्स के साथ लिंक नहीं होता है. प्रॉफिट्स हो ना हो लेकिन उनको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है. वो कंपलसरी है, वो कंपल्शन है, आप उसको ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हो. सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन. ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट, व्हेन पेएबल. स्टूडेंट्स, इट इज पेएबल व्हेन कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट इन अ ईयर आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द ऑब्लिगेशंस. डेफिनेटली उनका जो भी जरूरी ऑब्लिगेशन है वो सब पे करने के बाद जब कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाती है तभी ही ये पे किया जाता है, तभी ही डिविडेंड पे किया जाता है. ठीक है. इंटरेस्ट के बारे में, इट इज पेएबल एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. दैट मीन्स ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जैसे कि ऑब्लिगेशन नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है. वॉट एवर द कंपनी डील्स विथ एवरी ईयर दे हैव टू पे देम. ठीक है. इररिस्पेक्टिव कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड एवरी ईयर. ठीक है. लेट्स गो टू द फिफ्थ पॉइंट क्विकली चिल्ड्रन. या रेट. Dividend, it is paid at fluctuating rate to the equity shareholders since it is linked to the profits of the company. Definitely, dividend जो है profit से linked है ना. तो equity shareholders की जहां तक बात आती है, it is paid at a fluctuating rate, मतलब कम ज्यादा होते रहता है.
as well interest is concerned, rate of interest is fixed and predetermined at the time of issue of the security. मतलब ये तो फिक्स ही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो ऑलरेडी फिक्स करते हैं जब वो एक्चुअली इशू करते हैं सर्टन सिक्योरिटी, देन ओनली दैट टाइम ओनली दे डिटरमाइन द प्री-डिटरमाइन द प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उनको पे करना है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, इज फिक्स्ड यू कैन से. नेक्स्ट इज resolution. Students, payment of final dividend requires board resolution and ordinary resolution at AGM, annual general meeting, while interim dividend can be paid by passing only a board resolution. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस है. जब आप फाइनल डिविडेंड करते हो तब बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी उनको करना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग में. और इंटरिम, जब इंटरिम डिविडेंड, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है, व्हेन आई वाज डिस्टिंक्शन, आई वाज डूइंग द डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल, है ना. तो जब इंटरिम डिविडेंड की बात आती है, इट कैन बी पेड बाय पासिंग ओनली द बोर्ड रेजोल्यूशन. ठीक है, वहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात नहीं हुई है. इन केस ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट रिक्वायर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन एट एनी मीटिंग. ये तो पहले से ही तय है, तो वहां कोई बातों का, कोई रेजोल्यूशन का कोई बात ही नहीं है. तो इन दैट केस उनको कोई पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन की कोई जरूरत भी नहीं है किसी भी मीटिंग में. ओके. Seventh and the last point, children, accounting treatment or aspect. In case of dividend, dividend is an appropriation of profit. Definitely, है ना, appropriate होते जाता है because dividend is linked to the profit itself. So the more profits to the company, the more increase in the dividend, right? Interest और कुछ नहीं, it is a charge on the asset, irrespective आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, कुछ भी हो कंपनी के साथ, लेकिन ये चार्ज तो बाय डिफॉल्ट कटने ही वाला है बिकॉज द क्रेडिटर्स विल डेफिनेटली गेट द इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट, दैट टू ईयरली. ठीक है. सो दिस इज रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन dividend and interest, children. I think the topic itself have been little bit more cleared, है ना. So on that note, children, that's it in this video. I hope you found the video useful. Keep revising, children, keep studying. Okay, anything you want to share with me, you can always put in the comment section. You can always mail me at commercetute1720@gmail.com. On that note, children, thank you so much. Very soon we'll be back. Thank you so much.